بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں سلما کوثر۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور موسم کی صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم کی 21ویں صدی کی سب سے طویل فضائی جھڑپوں میں سے ایک میں دشمن کی برتری کی خوش فہمی کو خاک میں ملانے والے پاک فضائیہ کے شاہینوں سے ملاقات۔ محمد شہباز شریف کا کامرہ ایئر بیس کا دورہ۔ نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء، آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ وزیر اعظم کی پاک فضائیہ کے شاہینوں سے گفتگو پی ٹی وی نشر کرے گا۔ پاکستان اور آذربائیجان تنازع کشمیر کے منصفانہ اور دیرپا حل پر متفق۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر الہام علیوف نے پاکستان کی شاندار کامیابی پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا کے حالیہ بحران میں پاکستان کی حمایت کرنے پر صدر الہام علیوف اور آذری عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا بھارتی قیادت کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا، وزیر اعظم۔ معرکہ حق میں تاریخی فتح، کل ملک بھر میں یوم تشکر منایا جائے گا۔ خصوصی تقریب کل رات پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز تقریب میں شریک ہوں گے۔ دن کے آغاز پر مساجد میں قرآن خوانی اور خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ یوم تشکر کے موقع پر ملک بھر میں پرچم کشائی کی تقاریب۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریبات ہوں گی۔ شہداء کی قبروں پر حاضری دی جائے گی، پھول رکھے جائیں گے۔ مسلح افواج نے بہادری سے ملکی سرحدوں کا دفاع کیا۔ عوام کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں گے، وزیر اطلاعات عطا اللہ تعالیٰ۔ ہم نے سیز فائر کسی کو ریکویسٹ نہیں کی۔ ہم امن چاہتے ہیں لیکن ڈگنیٹی آنر کے ساتھ۔ وی ول ناٹ ایکسیپٹ اینی بریچ آف ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، وی ول ناٹ ایکسیپٹ اینی بریچ آف اوور ساورنٹی، وی ول ناٹ ایکسیپٹ اینی ہیجمنی۔ نیو نارم کی مت کو دفن کروا دیا جو کہ انڈیا واز ڈائنگ اینڈ ٹرائنگ ٹو امپوز آن دی ورلڈ۔ بے بنیاد الزام تراشی بھارت کا پرانا وتیرہ۔ پہلگام واقعے کے فوری بعد بھارت نے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کیے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی دنیا نے دیکھی۔ قومی سلامتی کمیٹی نے سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے فوری فیصلے کیے۔ خطے کی صورتحال پر دوست ممالک رابطے میں تھے۔ بھارتی میڈیا نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال۔ Pay glorious tribute to the armed forces of Pakistan for their exceptional bravery, strategic foresight, discipline, exemplary skills and supreme sacrifices in the service of nation. They upheld the highest traditions of outstanding professionalism, loyalty and patriotism. Congratulates the people of Pakistan. سینٹ میں بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی قوم اور مسلح افواج کی شاندار کامیابی پر متفقہ قرارداد منظور۔ پاکستان جموں و کشمیر کے بنیادی مسئلے سمیت تمام تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ سنتاس معاہدے سے روگردانی اور بھارتی آبی جارحیت جنگی اقدام تصور ہوگا، پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ مسلح افواج کی شاندار بہادری، پیشہ ورانہ مہارت پر شاندار خراج تحسین۔ قرارداد میں تمام برادر دوست ملکوں کی بھرپور حمایت پر اظہار تشکر۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबन जमीआ सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। Honorable Deputy Prime Minister, Defence Minister, Chief of the Army Staff, General Syed Asim Munir, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar, Naval Chief Admiral Naveed Ashraf, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम कौम के शाहीनों और कौम के बहादुर बेटों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी तरफ से और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की तरफ से फतेह के ऊपर, अजीम और शानदार फतेह के ऊपर आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करने आया हूं। अभी मैं कौम के उन अजीम माओं के बेटों को मिलकर आया हूं जिन्होंने इस मुख्तसर जंग में दुश्मन के न सिर्फ दांत तोड़े बल्कि उसके घमंड और गरूर को भी अपनी आला तरीन प्रोफेशनल महारत दलेरी के साथ दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया। मैं समझता हूं कि 6 मई से लेकर 10 मई के ये जो दिन गुजरे हैं और 10 मई उस दिन के इख्तिताम से पहले पूरी दुनिया को आपने अपनी आला तरीन जो महारत है आपकी, उससे आपने पूरी दुनिया को विरता हैरत में डाल दिया। दुश्मनों को आपने उनके चारों तरफ रोशन कर दिए और दोस्तों और भाई खाओं के एतमाद को आपने आसमान तक पहुंचा दिया। मेरे शाहीनों और कौम के अजीम बेटों और बेटियों, पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतेह पहले हमें कभी नसीब नहीं हुई और आपने इस शानदार फतेह से न सिर्फ दुनिया की सोच को तब्दील कर दिया बल्कि खित्ते और पूरी दुनिया में जो इक्वेशन है उसको तब्दील कर दिया। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी अल्लाह ताला की कोई और मेहरबानी हम पर नहीं हो सकती कि अफवाज पाकिस्तान के इस शानदार कारकर्दगी के ऊपर पाकिस्तानी तो उनके तो सर फख्र से बुलंद हैं और इस कामयाबी के ऊपर हम सब के गर्दनें अल्लाह के हजूर झुकी हुई हैं, मगर
دشمن کو آپ نے یہ پیغام دے دیا کہ اگر دوبارہ اس نے اپنی کبھی میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھا تو آپ اس کو پاؤں تلے رون دیں گے. اور میں اس کے لیے جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا اس میں سرفہرست سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں ایئر چیف کو ظہیر بابر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں نیول چیف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پوری حکومت پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 10 مئی کو پوری دنیا میں ایک ہی گونج اٹھی کہ یہ جنگ پاکستان نے اپنی تکنیکی مہارت جو کہ بہت زیادہ ہوم گرون ہے، اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو آپ نے مہارت حاصل کی. مجھے ایئر چیف بتایا کرتے تھے کہ پرائم منسٹر ہم نے یہ بھی اچیو کیا، یہ بھی اچیو کیا ہے. ابھی ہم نے ایک بڑی شاندار پریزنٹیشن لی ہے اور اس میں جو صحیح صورتحال وہ سامنے آئی اس پریزنٹیشن میں کہ آج میں قوم کو یہ بتا سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ 5 جہاز نہیں، آپ نے ان شاہینوں نے 6 جہاز دشمن کے مارے ہیں. اور اس کے ساتھ ڈرون بھی آپ نے مارا اور اس کے ساتھ ایک ایسا دشمن جو پاپولیشن کے لحاظ سے بھی ہم سے کئی گنا بڑا ہے اور حالیہ سالوں میں اس نے کئی 100 ارب ڈالر خرچ کر کے دنیا کا سب سے جدید اسلحہ اور اکوپمنٹ خریدا اور بتایا عالمی طاقتوں کو کہ اس خطے میں وہی تھانے دار ہے، وہی پولیس مین ہے. میرے عظیم قوم کے سپوتوں، جوانوں، شاہینوں، بیٹوں اور بیٹیوں، 10 مئی کی شام کو آپ نے اس نام نہاد تھانے دار کا بت پاش کر دیا اور رہتی دنیا تک وہ کبھی اب اس طرح کے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے دوران جو ایک مختصر جنگ تھی، چند گھنٹوں میں آپ نے اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے اپنی جرت، بہادری اور دلیری سے تاریخ میں وہ آپ نے تاریخ رقم کی ہے کہ جو قیامت تک دوست اور دشمن اس کو پڑھتے رہیں گے. 10 گھنٹے سے بھی کم آپ نے اس کو شکست ماس دی اور پاکستان کا آپ نے جھنڈا وہاں تک بلند کیا. پوری دنیا اس جھنڈے کو آج احترام سے دیکھ رہی ہے. میرے شاہینوں اور قوم کے عقابوں، میں آج یہاں پر اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ کی بہادری کو، آپ کی جرت کو، آپ کی دلیری کو. پوری قوم آج ایک ہے، یکجاں دو قالب ہے. اور اس مختصر جنگ کے دوران
पूरी कौम 24 करोड़ आवाम, हमारी माएँ, बुजुर्ग, नौजवान सजदा रेज़ थे और दिन रात दुआएं कर रहे थे आपकी कामयाबी के लिए कि ये आपकी कामयाबी, ये कौम की कामयाबी, ये आर्म फोर्सेस की कामयाबी और ये पाकिस्तान की कामयाबी थी। और राफेल जो भी हमें प्रेजेंटेशन में बताया गया कि 3 राफेल आपने गिराए और ये मार्का उन नौजवानों ने सर किया और ये राफेल को आपने जो मार गिराया, तो कुरान करीम में जो वाक़या आता है कि अबाबीलों ने हाथियों को शहमात दी, आपने अपने F-17 और दूसरे जो आपके चाइनी शनाख्ती जहाज़ हैं उसके साथ आपने राफेल को जो आपने निशाना बनाया है, क़यामत तक मोदी इसको याद रखेगा, दुनिया याद रखेगी। और इसी हवाले से कुरान करीम में आता है कि अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम माकूल। क्या तूने न देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या इनके मकर को बेकार नहीं कर दिया और इन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो इन्हें मट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे, बस इन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। आपने खाए हुए भूसे की तरह कर दिया, आपने खाए हुए भूसे की तरह कर दिया, आपने खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। तारीख इन्हीं अल्फाज में ये जो मुकाबला हुआ इन राफेल का याद रखेगी। मेरी कौम के बेटों और बेटियों, आपने इस अजीम फतह के हवाले से इमाम आलम की याद ताज़ा कर दी, आपने फैसल चौधरी की याद ताज़ा कर दी, आपने सरफराज रफ़ीकी की याद ताज़ा कर दी। उनकी बहादुरी और शुजाअत के किस्से आज पूरी कौम की ज़ुबान पर हैं। और एयर चीफ मार्शल, मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जिस महारत के साथ, जिस टेक्निकल इनोवेशन के साथ आपने ये जंग लड़ी है और आपने एयरफोर्स को लीड किया है। आपने जो फादर ऑफ एयरफोर्स एयर मार्शल असगर खान, उसके बाद एयर मार्शल शमीम अनवर, जो उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई थी, आपने जदीद टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल जो आपने इंजेक्ट किया है इस एयरफोर्स में, पूरी कौम आपकी इस कंट्रीब्यूशन को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। मैं यहाँ पर यह भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि चीफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जिस तरीके से इस पूरी जंग को लीड किया, हमारी आर्म फोर्सेस की क़यादत जो यहाँ पर बैठी है और यहाँ पर एयर फोर्स के जो शाहीन बैठे हैं, बहरी फोर्स के हमारे जो वो जवान हैं और बरी फोर्स के, इस तरह की कोऑर्डिनेशन, इस तरह की मुशावरत शायद इसकी पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कोई मिसाल मौजूद नहीं है। मैं इस तारीख़ के उन औराक का गवाह हूँ कि जहाँ पर कंसल्टेशन में माजी में फुकदान था, बट दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेल दोज पेनफुल स्टोरीज। दिस इज़ द टाइम to congratulate you and convey you what the international community feels about you. You have overnight earned their
respect, grudgingly or otherwise, through your outstanding performance, which is unmatched in the annals of history of the world. اور یہ کوئی آپ نے آرام سے یہ گر نہیں سیکھے، دن رات آپ نے اس کے لیے محنت کی ہے، آپ کے والدین نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں اور دن رات آپ نے محنت کی اور وطن کے جذبے سے سرشار جغرافیائی سرحدوں کو بچانے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ہماری آرم فورسز نے یہ جنگ لڑی اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ اس جنگ میں فرق کیا تھا دشمن اور ہمارے درمیان؟ ہم نے صبر، تحمل اور برداشت کا دامن نہیں چھوڑا اور یہ فیصلہ کیا کہ دشمن نے ہماری امن کی پیشکش کو جس گھمنڈ میں ٹھکرایا، ہم نے فیصلہ کیا کہ اب دشمن کو جواب دیں گے بہت سوچ سمجھ کر۔ دشمن نے اپنے حملے میں ان ننھے منھے بچوں کو شہید کیا۔ یہ وہ پھول ہیں جو کھلنے سے پہلے مرجھا گئے، یہ وہ عظیم پاکستانی بننے والی روحیں ہیں جو کہ آپ کی طرح پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے۔ دشمن نے ان معصوم بچوں کو، ماؤں کو، جوانوں کو نشانہ بنایا جن کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر ہم نے ان دلیر سپہ سالاروں نے دشمن کے جو فوجی تنصیبات تھیں ان کو اوپر ٹھیک ٹھیک نشانہ لگا کر دشمن کے اوسان خطا کیے اور ان کے ہوش گم ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وطن کے لیے ہمارے جو جوان وطن کے لیے جان دے گئے، جان کی قربانی دی انہوں نے، قیامت تک ان کی قربانی کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ اور میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میرے عظیم شاہینوں، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں، کہ آپ کی قربانی کو نہ میں نہ پوری قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی اور اس کی لاج رکھے گی۔ جس طرح آپ نے پاکستان کو اس جنگ میں عظمتوں کی انتہا تک پہنچایا، میں خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ہم پاکستان کی مٹی کی اور آپ کی اس قربانی کی لاج رکھیں گے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد اعظم پاکستان بنا کے انشاءاللہ۔ نیول چیف بیٹھے ہیں، اس جستجو میں تھے کہ دوبارہ 1965 کا دوارکا کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے اور اس شاندار فتوحات کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ امن ہمیں چاہیے، امن ہماری ضرورت ہے، لیکن امن کو کبھی کوئی دشمن کمزوری نہ سمجھے۔ اور میں یہ بھی آپ کو یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شہداء کے خاندانوں کہ جو کہ کوئی احسان نہیں، فرض ہے، فرض اولی ہے، ان کی کفالت کے لیے پوری طرح ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ ان کو کبھی اس میں لغزش نہیں آئے گی۔ آج میں یہاں پر یہ بھی ایک واضح واشگاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں
इस दुश्मन को कि तुम्हारा जंगी जुनून का बुखार उतर चुका, ख़त्म हो गया, अब अमन की बात करो तो उसके लिए हम तैयार हैं। और इस अमन के लिए जो लाजमी शराइत हैं वो तुम्हें अच्छी तरह पता है, मगर मैं दोबारा ज़हन नशीब कराना चाहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को उनका हक के खुद इरादियत का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनको देना होगा। और वादी कश्मीर में जो कश्मीरियों का लहू उससे सुर्ख हो चुकी है, वो तहरीक आज भी ज़िंदा है और उस वक्त तक ज़िंदा रहेगी कश्मीरियों की, जब तक कि उनको उनका हक नहीं मिल जाता। आएँ इसके लिए बैठकर बात करें ताकि ये वो इशू जो कभी भी दोबारा जंग की आग को भड़का सकता है, उसको हमेशा के लिए ख़त्म करें। पहलगाम के हवाले से पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में अपनी जग हसाई की और दुनिया को पता लग गया कि ये एक खौल है, एक बड़ी ताकत का अंदर से झूठ और अंदर से खोखलापन है, और वो पूरी दुनिया ने देखा। और आज आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की एक जो अक्सरियत जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है कि हमने कहा कि आए एक शफाफ और एक ट्रांसपेरेंट इसकी तहकीक करा लेते हैं। उसके बदले में हिंदुस्तान ने जो हमला किया उसकी सारी बात मैं कर चुका हूँ। तीसरी बात आपने की कि ट्रेड एंड टेरर दे डोंट गो टुगेदर। तो ये दहशतगर्दी किसने की? हमने तो नहीं की। हमारे बच्चों को, उनको बेगुनाह बच्चों को आपने इस तरह उनको मारा कि शायद तारीख़ इस बेदर्दी को कभी नहीं भूल पाएगी। आपने बलूचिस्तान में जो ट्रेन हाईजैकिंग हुई उसमें आपका एक बहुत बड़ा उसमें रोल है, और ये कोई बात ढकी छुपी नहीं। समझौता एक्सप्रेस कौन नहीं जानता कि किसने उसको अगवा किया था? एक इंडियन आर्मी ऑफिसर ने उसको अगवा किया था। मुक्ति बानी को किसने ट्रेन किया था? मशरक़ी पाकिस्तान में बगावत कराने के लिए। हमारी बहादुर अफवाज दहशतगर्दों का दिन रात मुकाबला कर रही है, और वो दिन दूर नहीं जब इंशाअल्लाह आपकी लीडरशिप में ज़रूर ये दहशतगर्दी का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। लिहाजा अगर दहशतगर्दी ख़त्म करनी है खत्ते में, तो आए बैठें और बात करते हैं कि कौन दहशतगर्द है और कौन दहशतगर्द का निशाना बना। मैं समझता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए ये इंतहाई काबिल फ़ख्र है कि मैं अजीम सपूतों के सामने यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको हदिया तबरीक पेश करने आया हूँ। मैं अपनी बात इस शेर पे ख़त्म करूँगा कि जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से मिलेगा। अफ़वाज पाकिस्तान, पाकिस्तान।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस का दौरा। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से खिताब में उन्होंने कि हमारे शाहीनों ने चंद घंटे में दुश्मन का गुरूर पाश पाश कर दिया। हमारे शाहीनों ने एम आलम, ससेल चौधरी और सरफराज रफीकी की याद ताज़ा कर दी। हमारे शाहीनों ने दुश्मन के 3 राफेल तैयारे मार गिराए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना है। ये अपने वतन के दुश्मन को हर हाल में धूल चटाएंगे, हर हाल में धूल चटाएंगे। जो देखे मैली नजरों से आंखें ही खींच निकालेंगे, आंखें ही खींच निकालेंगे। हाँ है दरी है जज्बा है खालिद की ललकार। यलगार है बातिल के लिए यलगार है। तैयार मार्का हक में तारीखी फतह और ऑपरेशन बनियानुम मरसूस की कामयाबी पर कौम और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए कल मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। तफसील यासिर हुसैन से। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब जुमे की रात पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, जबकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी तकरीब का हिस्सा होंगे। तकरीब में तमाम मकातिब फिक्र से अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआओं से होगा। अल्लाह ताला ने हमें एक फतह से हमकिनार किया, उस पर पूरी कौम कल अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ होगी। दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से किया जाएगा। जुम्मे के इज्तिमात में मुल्क कौम के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ की जाएगी। तो मैं पाकिस्तानी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने घरों पर पाकिस्तान का झंडा लहराएं और शाम की मगरिब की नमाज के बाद चिरागां करें, दिए जलाएं और इज़हार यकजहती करें, ना सिर्फ इस मुल्क की अफवाज के साथ और शोदा के साथ, बल्कि ये पाकिस्तानी कौम की फतह है और पाकिस्तानी कौम की इत्तेहाद इत्तेफाक की फतह है, उसको भी सेलिब्रेट करें। परचम कुशाई की तकरीबात वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में मुनक़िद की जाएंगी। कल का दिन परचम कुशाई होगी मुख्तलिफ मकामात में पूरे मुल्क के अंदर। मज़ार कायद पर, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की चेंजिंग की सेरेमनीज भी होंगी और इसके अलावा जो यादगार शहदा हैं उन पर फूल रखे जाएंगे, हाज़री दी जाएगी शहदा की कब्रों पर और उनको खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज की दिफाए वतन के लिए अहद वफा की अमली तफसीर है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयौफ से टेलीफोनिक राब्ता किया। वज़ीर आज़म ने हालिया बहरान में आज़रबाईजान की पाकिस्तान के साथ एकजहती और हिमायत पर सदर अलीयौफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सदर अलीयौफ की मुस्तकिल हिमायत पाकिस्तानी अवाम से उनकी बेपनाह मोहब्बत और खुलूस का मज़हर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया बहरान में आज़रबाईजान की हिमायत से दोनों मुल्कों के दरमियान पायदार और देरीना दोस्ती का इजहार हुआ है, जो हमेशा सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में किसी भी जारियत का सामना करने के लिए अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान अज़रबैजान के साथ दोस्ती को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने अज़रबैजान की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में 2 अरब अमरीकी डॉलर्स की सरमायाकारी से मुतालिक तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सदर अलीयौफ को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत को सदर अलीयौफ ने कबूल कर लिया। सदर अलीयौफ ने पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। खबरों का सिलसिला जारी है, भी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। मोटरवेज का सफर अब और भी बेहतर। रेस्ट एरियाज में महंगी और गैर मयारी अशिया अब नहीं, NHA का बड़ा इक़दाम। NHA, मोटरवे पुलिस, जिले इंतजामिया और फूड डिपार्टमेंट्स की टीमें करेंगी निगरानी। गैर मयारी अशिया पर होगी सख्त कार्रवाई। मुनासिब कीमत के साथ अब सफाई का भी रखना पड़ेगा ख्याल, ताकि रहे सबका सफर खुशगवार और यादगार। शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन पर इत्तला दें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी। जो वीट उगाते हैं, गंदम उगाते हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से काश्तकारों से किए गए एक और वादे की तकमील। गंदम के काश्तकारों के लिए अरबों रुपए से वजीर आला पंजाब गंदम सपोर्ट प्रोग्राम 2025 का आगाज, जिसके तहत किसान कार्ड के हामिल गंदम के 6 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए फी एकड़ 5,000 रुपए की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। ऐसे काश्तकार जिनके पास किसान कार्ड नहीं, वो भी वजीर आला पंजाब गंदम सपोर्ट प्रोग्राम से फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आज ही अप्लाई करें। WSP2025.punjab.gov.pk। किसानों की सहूलत के पेश नजर दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 मई 2025 से बढ़ाकर 31 मई 2025 कर दी गई है। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया है कि अमन और जंग दोनों के लिए हर दम तैयार हैं। भारत से जब भी जामे मुज़ाकरात होंगे, मसला कश्मीर सर फहरिस्त होगा। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार सेनेट इजलास में किया। तफसील अरसलान असद से। हालिया पाकिस्तान भारत झड़प और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तानी अफवाज और कौम की शानदार कामयाबी पर इजहार ख्याल करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कौम को पाकिस्तान और भारत के दरमियान अप्रैल से 10 मई के दरमियान रोनुमा होने वाले तमाम वाक़यात पर इत्मीनान में लिया। उन्होंने कहा कि 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारत ने पहलगाम वाक़ये को बहाना बनाकर अपने 70 से ज़ायद लड़ाका तैयारी अपनी फ़ज़ा में पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किए, जिसके फौरी जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स के 42 तैयारे अपनी फ़ज़ाई हदूद में तैयार थे। 5 जेट फाइटर जो इनिशियल नंबर था और 2 UAVs थे, वो एक्चुअली 6 जेट फाइटर हैं और एक UAV है जो इंडिया का तबाह हुआ है 7 मई के सुबह के आवर तक। और वो इतना बड़ी हजीमत उनके लिए थी, मैं समझता हूँ कि वो सोच भी नहीं सकते थे। तमाम मैं समझता हूँ उसमें कौम की दुआएं भी हैं, आर्म फोर्सेस की बहादुरी और जमाबंदी है और उनकी मेहनत है कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी फतह नसीब की। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए पहल नहीं की। हमने सीज फायर किसी को रिक्वेस्ट नहीं की। हम अमन चाहते हैं लेकिन डिग्निटी ऑनर के साथ। वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी ब्रीच ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी ब्रीच ऑफ अवर सॉवरेनिटी, वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी हेजमनी। न्यू नॉर्म की मिथ को दफन करवा दिया जो कि इंडिया वाज डाइंग एंड ट्राइंग टू इम्पोज ऑन द वर्ल्ड। नायब वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर इसहाक़ डार ने कहा कि दोनों मुल्कों के DGMOs के दरमियान 18 मई तक राब्ता रहेगा। इसके बाद जब भी दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी मुज़ाकरात होंगे तो वो जामे होंगे और जम्मू और कश्मीर के बुनियादी मसले समेत तमाम तनाज़ात पर बात होगी। सेनेटर इसहाक़ डार ने कहा कि जिस तरह हालिया मुश्किल हालात में अपोजिशन समेत पाकिस्तानी कौम ने मिली वहदत, यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा किया, उसी जज्बे के तहत मिसाक मईशत होना चाहिए। इट्स नेवर टू लेट। मैं समझता हूं कि इकोनॉमी पे सियासत नहीं होनी चाहिए। वी शुड हैव अ क्लियर रोड मैप। मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूं थॉट्स ऑफ ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कि हमें मिलके जिस तरह यहाँ यूनिटी की है, इकोनॉमिकली यूनिटी करें। सेनेटर इसहाक़ डार ने कहा कि भारत जब भी पाकिस्तानी कौम के जज्बे को आजमाएगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
سینٹ نے بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی قوم اور مسلح افواج کی شاندار کامیابی پر متفقہ قرارداد منظور کرتے ہوئے واضح کیا کہ سنتاس معاہدے سے روگردانی اور بھارتی آبی جارحیت جنگی اقدام تصور ہوگا جس کا پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں سینٹ اجلاس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پاکستان بھارت کشیدگی اور آپریشن بنیان مرصوص میں شاندار کامیابی پر قرارداد پیش کی جس کی ایوان نے متفقہ منظوری دی۔ Pay glorious tribute to the armed forces of Pakistan for their exceptional bravery, strategic foresight, discipline, exemplary skills and supreme sacrifices in the service of nation. They upheld the highest traditions of outstanding professionalism, loyalty and patriotism. Congratulates the people of Pakistan. قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جموں کشمیر کے بنیادی مسئلے سمیت تمام تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ جموں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ قرارداد میں فوجی اور سویلین شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں ہوں گی۔ قرارداد میں مسلح افواج کی شاندار بہادری، ڈسپلن، پیشہ ورانہ مہارت پر شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاکستان ایئر فورس کی شاندار کامیابی کو خصوصی طور پر سراہا گیا جس کی وجہ سے خطے میں تصویراتی توازن قائم ہوا۔ قرارداد میں تمام برادر اور دوست ملکوں کی بھرپور حمایت پر شکریہ ادا کیا گیا۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز نے آپریشن بنیان مرصوص میں شاندار اور تاریخی کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف، ان کی پوری ٹیم، پاکستان کی آرمی، فضائیہ اور بحری افواج، سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری افواج نے نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سینیٹر شہید رحمان نے بیانیے کہ جنگ میں بھارتی پروپیگنڈے کا بھرپور مقابلہ کرنے پر پاکستان ٹیلی ویژن کے کردار کو سراہا۔ آپریشن بنیان مرصوص اور کشمیر پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک موقف۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اسکائی نیوز سے بات کرتے ہوئے بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی صورت میں تیز اور یقینی جواب کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہماری سرزمین، سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرے گا ہمارا جواب بے رحمانہ ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے انتباہ کیا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقت ہیں، سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہوگی۔ If India thinks that it can carve out space for war between India and Pakistan, it is actually a recipe for carving out mutual annihilation. And what's your view on the ongoing threat? This is obviously a fragile truce. Yeah, I think this is the most important thing that we need to see, that why that India needs, the world needs to also to communicate and understand that they cannot allow and should not allow India to trump up this fake narrative of being victim of terrorism years after year and raise this bogey. And at the same time, Kashmir is an external problem. It's a problem that involves three countries, Pakistan, India and China also. It's a problem that has to be resolved by the will, as per the will of the people of Kashmir, as per the United Nations Security Council resolution. Was there, on that issue of Kashmir, any commitment to formally discuss it going forward from New Delhi? As we always say, that the Kashmir remains the central issue. It is the unfinished part of the agenda of the partition of India and Pakistan. Till the time we don't resolve the issue of Kashmir as per the will of the people, as per the United Nations resolution, there can never be peace between India and Pakistan. Anyone who tries to violate our territorial integrity and sovereignty, our response will be brutal, our response will be swift and assured. We love peace. If you see the streets of Pakistan right now, we are not celebrating victory, we are actually celebrating peace. پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق یہ بیان بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں دیا گیا اور یہ غیر ذمہ دارانہ بیان بھارتی عدم تحفظ اور ناکام دفاعی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کو بھارت کی طرح جوہری بلیک میل کی ضرورت نہیں، ہمارا روایتی دفاعی صلاحیتیں ہی کافی ہیں۔ انہوں نے بھارتی جوہری تنصیبات سے تابکار مواد کی چوری کے مسلسل واقعات پر
तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि IAEA और आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि गुज़श्ता बरस BARC से ताबकार डिवाइस की चोरी और कैलिफोर्नियम जैसे खतरनाक मवाद की स्मगलिंग जैसे वाक़यात सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान ने इन वाक़यात की जामे तहकीकात और भारत से जौहरी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने इस्लामाबाद में तैनात सिफारती मिशन को पाकिस्तान और भारत के दरमियान 10 मई 2025 को ऐलान करदा जंगबंदी के नफाज और इसमें होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। उन्होंने बताया कि खैर सगाली के जज्बे के तहत पाकिस्तान और भारत ने गुज़श्ता रोज़ एक दूसरे की तहवील में मौजूद पाकिस्तान रेंजर्स और भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों का तबादला किया। आमना बलोच ने इस पेशरफ्त में ताउन करने वाले दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा पुरअमन बकाए बाहमी मुकालमे और सिफारतकारी को तरजीह देता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ हमारी तरजीह है। ज़राई खुद किफ़ालत के हुसूल के लिए ज़राअत का शोबा जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रख़े ज़मीन, काबिल ज़रई माहिरीन और मेहनती किसानों से नवाजा है। पायदार और तवील मुद्दती ज़रई और सनती तरक्की की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि किसानों को आसान शराइत पर ज़रई कर्ज़ों की फराहमी यकीनी बनाई जाए और मुल्की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रई तहकीक पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़रई शोबे की तरक्की के लिए मुतालिका फ़रीक़ों और सूबों की मशावरत से मरबूत हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने ज़रई शोबे के हवाले से नेशनल एग्री इनोवेशन प्लान पेश करने और ज़रई बीजों की सर्टिफिकेशन के निज़ाम में जारी इस्लाहात में तेज़ी लाने की हिदायत की। उन्होंने आला मयार के बीजों के फ़रोग़ से मुतालिक मौसर लाहे-अमल तैयार करने और ज़रई शोबे के हवाले से जामे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरतीब देने की भी हिदायत की। इजलास में ज़रई शोबे में इस्लाहात के हवाले से बनाए गए वर्किंग ग्रुप की जानिब से तजवीज़ पेश की गई। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि मुल्क की खातिर ज़ाती अना कुर्बान करना होगी। सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए। कालाशाह काकू में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि किसान को ज़रूरी सहूलियात की फराहमी तरजीह है। तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद। कालाशाह काकू में गंदम इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत ट्रैक्टर्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान का अमन हमारी रेड लाइन है। उन्होंने कहा कि यह सरहदों की जंग नहीं बल्कि नजरिया और जज्बों की जंग थी जिसमें कामयाबी हासिल हुई। अल्लाह ताला की मदद बदनीयत और नफरत पैदा करने वालों पर नहीं आती। सियासी अस्करी क़यादत, अवाम और मीडिया ने जंग के दौरान भरपूर साथ दिया। कि फतह के बाद, इस अजीम फतह के बाद आज दुनिया ये कहने पे मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान न सिर्फ एक मजबूत बल्कि ताकतवर मुल्क के तौर पे वो उभर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ज़राई शोबे की तरक्की पंजाब हुकूमत की हमेशा से तरजीह रही है। गंदम की स्पोर्ट प्राइस की बजाय काश्तकार को डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि पहली मरतबा 1000 ट्रैक्टर किसानों को बिल्कुल मुफ्त दिए जा रहे हैं। आखिरी मरतबा आपको ट्रैक्टर मिला होगा जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और अब आपको कई साल के बाद ट्रैक्टर तब मिला है जब नवाज शरीफ की हुकूमत है। जो ग्रीन ट्रैक्टर्स हमने दिए हैं, 9,500 ट्रैक्टर्स किसान भाइयों को मिल चुके हैं। 10 लाख रुपए फी ट्रैक्टर सब्सिडी है, और इस साल 25-26 में हम 20,000 और ट्रैक्टर्स जो हैं वो देने जा रहे हैं माशाल्लाह। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी ने कहा कि किसान की खुशहाली पंजाब की खुशहाली है। यही वजह है कि काश्तकारों की फलाह के लिए इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आला ने चीन की तरफ से तोहफ़तन मिलने वाले 300 मिलियन के 75 ट्रैक्टर्स और दीगर ज़राई आलात का भी मुआयना किया। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। KMS के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला पुलवामा में मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। फौजियों ने नौजवानों को जिले के इलाके तराल में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक जाली मुकाबले में शहीद किया। भारतीय फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरफ से रियासी और कठुआ अजला में भी ऑपरेशन जारी है। भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर, इस्लामाबाद, शुपियां, कुलगाम, पुलवामा, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और पूंछ अजला में भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी। काबिज एहलकारों ने घरों में घुसकर मकीनों को हिरासत किया और अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर कीमती अशिया जब्त कर लिए। दूसरी जानिब श्रीनगर और दीगर इलाकों में पोस्टर चस्पा किए गए, जिनके जरिए भारतीय जारियत के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई पर पाकिस्तान और पाक अफवाज को मुबारकबाद दी गई। पोस्टरों में पाकिस्तानी परचम के अलावा राफेल समेत भारतीय जंगी तैयारों को गिराने वाले J-10C की तस्वीर भी मौजूद है। आज़ादी पसंद तंजीमों की तरफ से चस्पा किए गए पोस्टर्स में लिखा है, ऑपरेशन बनियानुम मरसूस, भारतीय फौजी जारियत के खिलाफ पाकिस्तान का दंदान शिकन जवाब। पाकिस्तान ने कश्मीरियों के दिल जीत लिए हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय अस्करी सलाहियत का पोल खोल दिया। कश्मीरी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी तक हरगिज चैन से नहीं बैठेंगे।
वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो दादू तुर्बत 48, डीजी खान 47, नूरपुर थल, बखर, बहावल नगर, रहीम यार खान, बहावलपुर और नौकंडी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 31, लाहौर 33, कराची 36, पेशावर 33, कोयटा 37, गिलगित 35, मुजफ्फराबाद 39, मरी 37, दीर 34, चित्राल 35, रावलाकोट 28, मालम जब्बा 26, फैसलाबाद 44, खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मेला दोबारा सजने में 2 रोज बाकी रह गए हैं। मुकाबले 17 से 25 मई तक रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लीग के आखिरी 4 ग्रुप मैचेस 17, 18 और 19 मई को होंगे। 18 मई को डबल हेडर होगा। कजाफी स्टेडियम प्ले ऑफ मरहले और फाइनल की मेज़बानी करेगा। क्वालिफायर 21 मई को, पहला एलिमिनेटर 22 मई को और दूसरा एलिमिनेटर 23 मई को लाहौर में खेला जाएगा। 2 बेहतरीन टीमों के दरमियान 25 मई को फाइनल लाहौर में सजेगा। इवेंट के 34 में से 26 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं। PSL के तमाम मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान वापसी का सिलसिला जारी है। लाहौर कलंदर्स के जिम्बाब्वेन खिलाड़ी सिकंदर रजा इस्लामाबाद में स्क्वाड को ज्वाइन कर चुके हैं। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब उल हसन बकिया मैचेस में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करेंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फिन एलन और रेली रोसो ने टीम को अपनी दस्तयाबी से आगाह कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर बेन डॉर्शियस PSL के बकिया मैचेस के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को दस्तयाब होंगे। इससे कबल रसी वेंडरडोसन और एलेक्स हेल्स भी PSL में शिरकत का ऐलान कर चुके हैं। नेशंस हॉकी कप के लिए कौमी हॉकी टीम का तरबीती कैंप इस्लामाबाद में जारी है। कैंप हेड कोच ओलंपियन ताहिर जमान की निगरानी में जारी है, जिसमें खिलाड़ियों की तकनीक, फिटनेस और स्किल्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। नेशंस हॉकी कप 15 से 21 जून तक मलेशिया में खेला जाएगा, जिसमें 8 टीमें शिरकत करेंगी। पूल ए में फ्रांस, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया और वेल्स शामिल हैं। पूल बी में जापान, पाकिस्तान, मलेशिया और न्यूजीलैंड को रखा गया है। पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज 15 जून को मेज़बान मलेशिया के खिलाफ करेगा। पाकिस्तान का दूसरा मैच 16 जून को जापान और तीसरा मैच 18 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ शेड्यूल है। सेमीफाइनल्स 20 जून जबकि फाइनल मैच 21 जून को खेला जाएगा। जी नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक, सलमा कौसर और हमारी टीम को हमारे साथ इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़।